Hello, my name is Dr. Syed Raza, and I work as a cardiologist in Bahrain. And today I am going to speak on a very important subject, and that is called cardiac screening. Heart disease, as you may know, is a growing medical problem, and it is now supposedly number one killer all across the globe. And people die of heart diseases every day, and they die suddenly. They may not give you any prior warning, but they may attack you suddenly, and that is how people they die without prior warning, without any symptoms of any heart disease. So it is very important to recognize the early signs of heart attack and also get yourself tested, which is cardiac screening, to know beforehand if you have any problem that can be diagnosed well in time and they can be managed effectively, not only to prevent a heart attack but sometimes also to prevent a death. It can save your life if you screen your heart. Next slide. You may have read in the newspaper, you may have seen on the television number of times young individuals, fit individuals going to the gym. Many celebrities who apparently have got no medical issues, they die suddenly without any prior warning. They are well-known personalities. You may have heard in the news, you may have read in the newspaper, they have also died suddenly. They have lost their lives at work, during travel, in a car park, in a movie theater. And athletes whom we consider the most fittest individuals, and they are also the people who may die suddenly. And there's not one but a number of examples, athletes dying on the pitch, on the playground while they're playing football, volleyball, cricket, boxing, and so on. So it is important therefore that everybody, not only the athletes, there is a program, the athletes, they now undergo a cardiac screening, some of the tests that are done prior to they participate in athletic activities or in sports activities. But in general, everyone should get their heart screened. Next, please. Now, before I go to the cardiac screening, let me just explain to you in very brief, just by these pictures and videos, as to what are the conditions that lead to sudden heart attack or sudden cardiac death. So number one culprit for sudden cardiac death is blockage of your heart arteries. खून की नली अगर कभी बंद हो जाए और खून ना मिले दिल के मसल को, तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं. और ये जो प्रॉब्लम है ये स्टार्ट होती है अराउंड द एज ऑफ 20, और खून की आर्टरी में एक चर्बी से बनती है पहले, और धीरे धीरे ये चर्बी जमा होते होते कुछ सालों बाद ये खून की नली को पूरी तरह से रोक देती है या ब्लॉक्ड हो जाती है आर्टरी, तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं. दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है वाल्व में. तो हार्ट में जैसे 4 वाल्व्स हैं, उसमें एक जो वाल्व है जो एओर्टिक वाल्व है, which actually helps to allow the blood from the main chamber of the heart, that is called the left ventricle, to the main artery of the heart, and that valve is called aortic valve. अगर बिल्कुल सिकुड़ जाए, which is called severe aortic stenosis, that can lead to sudden cardiac death. इसके अलावा और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि हार्ट के मसल में अगर प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट की मसल आपकी अगर थिक हो जाए या वो बैलून की तरह फूल जाए और उसकी पंपिंग फंक्शन जो है वो बहुत अच्छी ना हो, तो दैट मे लीड टू हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट की पंपिंग ही ना हो ठीक से, या फिर उसमें कुछ एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में एरिथमिया कहते हैं, वो हो जाए, तो दैट कैन लीड टू अगेन सडन कार्डियक डेथ. और फाइनली अगर कोई प्रॉब्लम ना हो और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ. आप न्यूज़ में सुनते हो कि 20 साल का लड़का या 15 साल का बच्चा वो हार्ट अटैक से मर गया,
तो असलियत में ये हार्ट अटैक नहीं है, दिस कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट। तो इसमें खून की नली की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें खून की नली ब्लॉक नहीं हो रही है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी माल फंक्शन कर जाना, या फिर लेमेंट अब में शॉर्ट सर्किट हो जाना इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो प्रॉब्लम जब हो तो हार्ट का जो पंप है वो पंप वो सही तरीके से नहीं करेगा, और इसमें चंद मिनटों में, मैक्सिमम 10 मिनट्स, उस बच्चे की या एडल्ट है तो एडल्ट की डेथ हो सकती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट मसल की प्रॉब्लम अलग होती है, खून की नली की प्रॉब्लम अलग होती है, वाल्व की प्रॉब्लम अलग होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम अलग होती है। और चारों चीज़ें जो हैं वो सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ कर सकती हैं। तो इसी के लिए हम लोग स्क्रीनिंग भी इसी तरह से करते हैं कि सारी चीज़ें ये आइडेंटिफाई हो जाएं। नेक्स्ट स्लाइड्स। तो जो कार्डियक स्क्रीनिंग होती है बहुत ही सिंपल है, और वो स्टार्ट होता है कंसल्टेशन से। और ये कंसल्टेशन आपके हृदय विशेषज्ञ के साथ हो सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, या कोई आपके फिजिशियन के साथ। और कार्डियोलॉजिस्ट का काम ये बहुत अहम है इस वक्त, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपके हिस्ट्री को समझे, वो आपके जो सिम्टम्स हैं, जो कार्डियक सिम्टम्स हो सकते हैं, उसे मिस ना करें। तो फर्स्ट स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एनकाउंटर विद द कार्डियोलॉजिस्ट और योर डॉक्टर इज़ इंपॉर्टेंट, so that they recognize that you have got some symptoms underlying that may lead to some grievous problem, it may will lead to heart attack and sudden death। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको कोई सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, से फॉर एग्जांपल कोई चेस्ट पेन, सीने में दर्द, छाती में दर्द होता है चलने में, सांस फूल जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने में, या कोई धड़कन दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, पाल्पिटेशंस हो जाए, या फिर आपको डिजनेस या चक्कर आ जाए या बेहोश हो जाए, तो ये सब चीज़ें नोट करने वाली है। और इसको अपने आप में नहीं रखना है, ये आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। और आपको अगर आपका डॉक्टर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है तो तो आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपका डॉक्टर इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराए। और एक दो इन्वेस्टिगेशन अगर करके डॉक्टर अगर कहता कि नहीं ये सारा कुछ ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप दूसरी ओपिनियन ले सकते हैं दूसरे डॉक्टर से। Till the moment you are very satisfied and your doctor is very satisfied that there is no grievous underlying medical problem that can lead to a catastrophic event like a heart attack or a sudden cardiac death। तो ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। तो बहुत सारी टेस्ट हैं, तो अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन स्टेप 1 पे मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट एनकाउंटर विथ योर डॉक्टर so that he or she understands your symptoms, that you have a cardiac problem, that you have a cardiac symptoms, and based on those symptoms he or she is going to further investigate you। तो पहली इन्वेस्टिगेशन इसमें जो आती है वो है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग ऑफ योर हार्ट। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही चीप है, रेडिली अवेलेबल एवरीवेयर, मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स दे हैव गॉट द ECG मशीन। तो आपकी ECG ट्रेसिंग विद इन मिनट्स आ जाती है, लेकिन इट गिव्स यू वाइटल इन्फॉर्मेशन। ये बताती है आपको पहले कोई हार्ट अटैक हो चुका है कि नहीं, या आपको हार्ट अटैक का रिस्क है, या आपके हार्ट मसल में प्रॉब्लम है, या आपके हार्ट की साइज़ बढ़ गई है, हार्ट का मसल मोटा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो ECG से मिल जाती है। तो ECG का करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा टेस्ट जो आता है वो है एकोकार्डियोग्राम। ये भी बहुत ही सिंपल है, नॉन इन्वेजिव है, नॉन पेनफुल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन की तरह है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड पेट का होता है या अल्ट्रासाउंड हार्ट का होता है। इससे लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हम लोगों को। हमें हार्ट के चेम्बर साइज़ का पता लग जाता है, वाल्व्स का पता लग जाता है, इसमें फिर आपकी पंपिंग कैसी है, और जो अगर बर्थ से कुछ लोगों को कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट कोई होल्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो एकोकार्डियोग्राम भी स्क्रीनिंग में बहुत मददगार साबित होती है। ECG करके अगर आपका डॉक्टर कहते कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो प्लीज़ वो ना माने, एकोकार्डियोग्राम करने की आप रिक्वेस्ट करें, जो अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद जो फर्दर टेस्ट है आप करा सकते हैं। एक तो होता है स्ट्रेस ECG। आपको अगर छाती में दर्द है, सीने में दर्द, चलने में अगर कोई चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, और या तो सांस फूल जा रही है, आप थक जा रहे हैं जल्दी, तो
आपको रिक्वेस्ट करें ईसीजी नॉर्मल हो, एको नॉर्मल हो, फिर भी आप टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करें डॉक्टर से आपका स्ट्रेस टेस्ट कराएं। स्ट्रेस टेस्ट क्या है? वो एक लाइक ट्रेडमिल टेस्ट है। आप ट्रेडमिल पे चलेंगे और आपकी कंटिन्यूस ईसीजी होती रहेगी। और इसको करने का मकसद ये है कि ये जो आपके हार्ट को स्ट्रेस करता है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेस ईसीजी दिया गया है। आपका हार्ट जो स्ट्रेस में आता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ता है तो कुछ चेंजेस जो हैं ईसीजी में आपके रेस्ट पे नहीं आएंगी, वो आपके एक्सर्शन या स्ट्रेस पे वो चेंजेस आ जाएंगी। तो इससे पता लग जाता है कि आपके हार्ट की जो नलियां हैं उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई रुकावट तो नहीं है ब्लड की, जिससे फ्यूचर में जाकर के कोई हार्ट अटैक की संभावना हो या कोई पॉसिबिलिटी है। तो वो हो गया स्ट्रेस टेस्ट। फर्दर टेस्ट जो है, आप हार्ट की आर्टरीज डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड से तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रासाउंड गर्दन की आर्टरीज जो कैरोटिड आर्टरीज कहलाती है, तो इसको स्कैन अगर करें तो पता लग जाता है कि वहाँ पे कोई चर्बी जमी हुई है या कोई रुकावट है वहाँ पे, और रिप्रेजेंट करता है ये हार्ट की आर्टरीज को, कॉर्नरी आर्टरीज जिसे कहते हैं। तो ये है कैरोटिड आर्टरीज जो रिप्रेजेंट करता है कैरोट के अंदर कि आपकी कोई प्रॉब्लम कॉर्नरी आर्टरीज हार्ट की आर्टरीज में तो नहीं है। तो दिस इज जस्ट लाइक एक्सटर्नल फोटोग्राफ आप ले रहे हैं हार्ट की आर्टरी की। आप पिक्चर यहाँ ले रहे हैं लेकिन आप इन्फॉर्मेशन अंदर की ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी ये। अच्छा, आजकल जो एक मैं नया टेस्ट नहीं कहूँगा, ये कुछ सालों से है, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेस्ट है ये। इसे कहते हैं कार्डियक सीटी। तो कार्डियक सीटी जो है ये क्या होता है कि इसमें 2 स्टेजेस में इसके टेस्ट होते हैं। एक होता है कैल्शियम स्कोरिंग, जिसमें देखा जाता है कि आपके कॉर्नरी आर्टरीज, हार्ट आर्टरीज में कैल्शियम डिपॉजिट्स कितने हैं। और ये रिसर्च ने पाया है कि अगर ज़्यादा कॉर्नरी कैल्शियम है डिपॉजिट्स आपके हार्ट के आर्टरीज में, तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है ज़्यादा आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक होने की। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपकी कैल्शियम आर्टरीज में कैल्शियम बिल्कुल नहीं है और आप यंग एज में है, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर यंग लाइक इन योर 20s और 30s, कॉर्नरी कैल्शियम इज 0, दैट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट हैव रिस्क। इसमें यह होता है कि वो चर्बी जमी होती है, देयर इज़ अ प्लैक फॉर्मेशन, जो चर्बी को कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हो सकता है, लेकिन वो नॉन कैल्सीफाइड हो सकता है, इसमें कैल्शियम जमा ना हो, तो वो कभी ब्लॉक कर सकता है आर्टरीज को। लेकिन ओल्ड एज में आप 40s 50s के ऊपर कैल्शियम ज़्यादा है, तो दैट इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। तो जितनी ज़्यादा कैल्शियम उतनी ज़्यादा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। दूसरा टेस्ट जो कार्डियक सीटी का है वो डाई दे के करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राम। आप लोगों ने सुना होगा एंजियोग्राम के बारे में। तो वो एक कैथेटर डाल करके ये हाथ के किसी आर्टरी में या पैर के आर्टरी में डालते हैं, वो एक कैथेटर, वो दिल के अंदर जाता है, डाई डालते हैं, वो फिर आपकी पूरी पिक्चर्स ली जाती है। तो उसी तरह का है ये, लेकिन ये कैथेटर अंदर नहीं डाला जाता है, आपको सिर्फ कैथेटर जो छोटा कैनुला होता है उससे एक डाई इंजेक्ट करते हैं, आपको एक स्कैनर में डाल देते हैं, सीटी स्कैन में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 2-4 मिनट का टेस्ट है। आपको सांस रोकने को कहा जाता है 1-8 मिनट के लिए, 1-8 मिनट में 30 सेकंड के लिए, और आपके हार्ट की आर्टरीज की पिक्चर ली जाती है डाई डाल करके। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है और इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें आपकी आर्टरीज, खून की आर्टरीज बिल्कुल अच्छी दिखती हैं, और इसमें कितना चर्बी जमा हुआ है, हाउ मच प्लैक इज देयर, वी गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हार्ट अटैक। लेकिन ये सबको कराना चाहिए नहीं, ये हम लोग एक रिस्क कैलकुलेट करते हैं। कुछ गैजेट्स ऐप्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि आपके रिस्क कितनी है। अगर बहुत कम रिस्क है, 0 रिस्क है, लो रिस्क है, तो उसमें डाई डालने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वेरी हाई रिस्क है तो उसमें भी डाई, ये टेस्ट सीटी एंजियोग्राम की ज़रूरत नहीं, उसमें फिर आप हो सकता है बाकी टेस्ट कराएं या कैथेटर एंजियोग्राम कराना ज़रूरी होता है। तो इसी कहते हैं इंटरमीडिएट रिस्क। आपके ना तो लो रिस्क है ना वेरी हाई रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है फॉर फ्यूचर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, जो हमें कैलकुलेशन से मिलता है। तो आप ये सीटी एंजियोग्राम करा सकते हैं एंड इट जनरली गिव्स यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये तो बात हो गई कार्डियक स्क्रीनिंग की। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इज़ मेकिंग पीपल अवेयर। तो अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर पेशेंट्स, देयर रिलेटिव्स, देयर लव्ड वंस, बट ऑल्सो फॉर जनरल पब्लिक। पहला तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हार्ट अटैक जो है एक बहुत ही जानलेवा ये आजकल की प्रॉब्लम है ये,
एंड इट इज़ जस्ट ग्रोइंग। तो उसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, तो एक बार मैं बता चाहूँ, आप लोगों को शायद मालूम हो कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और इंडिया में ख़ास करके एक रिस्क फैक्टर जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक का है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स मेनली फॉर पीपल हु आर लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन इंडिया, साउथ एशिया। उसके नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट नंबर में, वो है स्मोकिंग। ये सिगरेट स्मोकिंग हो या सिगार स्मोकिंग हो, या फिर इवन जो लोग बाकी कंट्रीज में शीशा पीते हैं, हुक्का पीते हैं, और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है वो वेप का, तो सारे ही नुकसानदेह है ये। तो दे ऑल पोज रिस्क फॉर फ्यूचर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर अगेन इज़ ए साइलेंट डिजीज़। आप अगर अपना ब्लड प्रेशर नहीं नाप पाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी हो तो आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं। तो हाइपरटेंशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। और उसके बाद आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में भी कई वैरायटीज़ हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन रफली जो हम जानते हैं उसमें एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कहलाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल एसडीएल। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि ये आपके ये जीन में है। और हम लोग एडवाइस करते हैं एज डॉक्टर, एज ए फिजिशियंस, कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप डाइट करें, लो फैट, या बिल्कुल ही कम कर दें अपने फ़ैट के इंटेक को, ऑयल को खाना कम कर दें, जो बटर वगैरह है, घी है, ये सब चीज़ें आप कम लें, और शुगरी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें को आप कम कर दें। और जो डाइट है, कार्बोहाइड्रेट को कम रखें, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं, और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। तो एक्सरसाइज और डाइट का कॉम्बिनेशन, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं हम लोग, दैट कैन हेल्प टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल शुरू से बहुत ज़्यादा है तो इसे हम लोग कहते हैं फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रेलिमिया, मतलब कि ये कोलेस्ट्रॉल आपके जीन से बन रहा है। आप क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये आपके जीन में है। आप एक्सरसाइज तो करते रहें, डाइट करते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल आपका मेडिसिन से ही ठीक होगा, जिसे स्टैटिन्स कहते हैं, और स्टैटिन्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स और हैं। मोटापापन अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, एंड वी कॉल ओबेसिटी, जो मोटापा है, दैट इज़ मदर ऑफ एटलीस्ट 200 डिजीज़। तो मोटापा अगर है तो उसे कम करने की कोशिश करें। और मोटापा जो हम लोग देखते हैं ख़ास करके इंडियंस में, साउथ एशियंस में, वो मोटापा पेट पे आता है। तो वज़न बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रह गया आजकल। जैसे हम लोग वेइंग स्केल पे पेशेंट को खड़ा कर देते हैं और उसका वज़न ले लेते हैं, या आम आदमी जनरल पब्लिक का वज़न ले लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा वज़न ज़्यादा है तो तुम अनहेल्दी हो। नहीं, वो अब थ्योरी चेंज हो चुका है। तो वज़न जो है उससे इम्पॉर्टेंट है कि आपका फ़ैट कितना है यहाँ पे। और आजकल बॉडी कंपोजिशन मशीन्स आ गई हैं जो एक्यूरेटली असेस करेंगे कि आपके स्किन के अंदर फ़ैट, जिससे सबक्यूटेनियस फ़ैट कहते हैं, वो कितना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ैट जिसको कहते हैं विसरल फ़ैट, वो विसरल फ़ैट वो बॉडी के अंदर वो बॉडी कंपोजिशन मशीन से जानी जा सकती है, या फिर एमआरआई मशीन से। और वो अगर ज़्यादा है, वो डायरेक्टली आपको पोज करता है रिस्क के लिए फॉर फ्यूचर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो विसरल फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन रफ कॉमन नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है कि आपका अगर बेली या पेट या निकला हुआ है, यहाँ पे फैट ज़्यादा है, तो इन इटसेल्फ दैट इज़ ए रिस्क फॉर फ्यूचर हार्ट अटैक। और इंग्लिश में एक कहावत है, लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी कमर की जो गर्थ है, आप बेल्ट अगर लंबी पहनते हैं तो आपको रिस्क है कि आपकी लाइफ शॉर्ट हो। देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्यूचर हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स और हैं। मैं यहाँ पे जनरल पब्लिक का ये मेरा लेक्चर है तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अगर फैमिली में किसी को रिस्क है कि किसी के फादर मदर को अर्ली हार्ट अटैक से ये है मुराद के अगर लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज किसी के पेरेंट्स को या फिर ब्रदर को या अंकल को लेस देन 60 से फॉर एग्जांपल 40s 50s में हार्ट अटैक हो जाता है, या ख़ुद किसी को 30s 40s 50s में हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग सेट ऑफ ब्लड टेस्ट हैं जो लिपिड पैनल की ही तरह है, लेकिन जो स्पेशल टेस्ट हैं वो कराने चाहिए। वो भी आजकल स्क्रीनिंग में बहुत ही ज़रूरी हैं।
तो ये सब स्क्रीनिंग की चीज़ें हैं जो लोगों को पता होना चाहिए, एंड वी शुड मेक द पेशेंट्स अवेयर of few things and educate them first to recognize the symptoms of heart attack. They should recognize and be aware of the comorbidities. अगर उनको डायबिटीज़ है तो उसके टेस्ट करनी ज़रूरी है, पता उनको चलना चाहिए उनको डायबिटीज़ है कि नहीं, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं, उनका ब्लड प्रेशर कितना है, स्मोकिंग करते हैं तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है कि स्मोकिंग इज़ बैड, इंक्लूडिंग वेपिंग. बहुत से लोग समझते हैं कि वेपिंग तो लो रिस्क है या कोई रिस्क नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि वेपिंग इज़ मोर अनहेल्दियर एंड हैज़ पोजेज मोर रिस्क देन नॉर्मल सिगरेट स्मोकिंग. तो ऑल इन ऑल तो यही है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों की कोशिश रहती है एज फिजिशियन डॉक्टर्स टू एजुकेट द पब्लिक एंड अलॉन्ग विद द पेशेंट्स. तो आज का यही था मेरा टॉपिक जो मैं कहना चाहा था कार्डियक स्क्रीनिंग के बारे में. तो आज ही आप इसको अगर आप समझ गए हैं तो, और आपने अपनी हार्ट के चेक नहीं कराए हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें. आपका कोई समस्या पहले ना हो, फिर भी अगर आपकी एज 40 से ऊपर है या फिर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक स्ट्रोक की, तो प्लीज़ अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें और कार्डियक स्क्रीनिंग अपना हार्ट चेक ज़रूर कराएं. शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच.